Good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अंजलि बहुत दिन बाद में, सुमन भी बहुत दिन बाद में, आप दिखाई दे रहे हैं। हेलो। छोड़ बहुत दिन बाद में दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए। Yesterday discussed, hello, good morning everybody. Yesterday discussed regarding so many points of decomposition, process of decomposition, and generally discussed regarding some other factors like peroxide, PAR, photosynthetic active radiation, next energy flow, as well as food chain, food wave, etc. Now, definition today, you can write down one definition. What do you mean by standing crop? Standing crop. Standing crop. लिखते चलो. What is standing crop? Standing crop is tropic level has a certain mass of each tropic level has a certain mass has a certain CPRTAI, certain mass of living material at a particular time period, which is called standing crop. Standing crop. A definition of standing crop. What is the its trophic level has a certain mass of living material at a particular time, which is called the standing crop. Its trophic level has a certain mass of living material at a particular time, which is called standing crop. Okay, standing crop. Hello. Yes, sir. इसको लिखना, हम तो रोज लिखाते हैं, तो उसको कोई लिख रहा है नहीं लिख रहा वो हम देखने नहीं जा रहे हैं, बट ये सब डेफिनेशन आता है। सब डेफिनेशन को चाहे नीट एग्जाम हो चाहे इसमें सीबीएसई एग्जाम हो, सब डेफिनेशन आता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट, DFC, डेट्रिटस फूड चेन, कंप्लीट हो गया। हेलो। यस सर। डेट्रिटस फूड चेन हम लोग जानते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एटसेट्रा, और टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन एटसेट्रा। बट डेट्रिटस फूड चेन, व्हाट डू मीन बाय डेट्रिटस? डेट्रिटस फूड चेन, detritus food chain or DFC, detritus food chain or DFC. DFC, first of all, it begins with organic matter. It begins with organic matter. Organic matter and decomposes which are called saprotrophs or saprophytes.
saprophytes representing in the first trophic level. Okay. So this is BFC. It begins with organic matter and decomposers, which are called saprophyte, representing the first trophic level. Generally, कोई भी फूड चेन शुरू होता है प्रोड्यूसर से, बट ये डेट्रिटस फूड चेन शुरू होता है डिकम्पोजर से. डेट्रिटस फूड चेन शुरू होता है डिकम्पोजर से. Detritus food chain started with decomposers. It begins with organic matter and decomposers, which are called saprophytes, representing in the first trophic level detritus food chain. Now in detritus food chain मैंने ये कर रहा है और grazing food chain दोनों में कंपेयर आता है. Grazing food chain it is started or begins with the producers, or we can say the grasses or the green plants, etc. But detritus food chain started or begins with the organic matter and the decomposers, which are called saprophytes. Okay. Next one, example of detritus food chain. Detritus, इसको complete हो गया, इसको लिख लिए. Yes, sir. अच्छा, detritus food chain. इसके बाद आप लिखिए फूड चेन, एक ग्रेजिंग फूड चेन GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, GFC. इसमें ग्रास, rabbit and lion or detritus food chain इसमें decomposers, dead leaves, bracket में decomposers, then wood louse, LOUSE, wood louse, and then blackboard. So two food chain, एक GFC food chain grazing food chain और एक है आपका detritus food chain. दोनों food chain का लिख लीजिए, detritus food chain and grazing food chain दोनों. कंप्लीट होगा तो बताओगे? हो गया सर. डेट्रिटस फूड चेन, हम लोग जनरली ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में तो जानते हैं, ग्रास से ग्रास हॉपर एक्सेट्रा बहुत हो सकता है, बट डेट्रिटस फूड चेन where the living dead organic matter act as the that means decomposers, and decomposers को उस पर डिपेंड करता है wood louse के बाद blackboard. ये डेट्रिटस फूड चेन. नेक्स्ट आप आ जाओ, ये एनर्जी फ्लो के बारे में आउट ऑफ टोटल सोलर एनर्जी फ्लो में एनर्जी फ्लो आउट ऑफ इसमें लिखना है आउट ऑफ the total incident solar radiation, out of the total incident
solar radiation, solar radiation only 50%, only 50% of its photosynthetic active radiation. Photosynthetic active radiation, इसको लिख लो PAR, कितना परसेंट इंसिडेंट सोलर एनर्जी होता है, उसका कितना परसेंट एनर्जी फ्लो में यूज होता है? 50% ऑफ द टोटल, 50% टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में 50 जितना रेडिएशन होता है उसका 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इसमें यूज होता है, दैट मींस एनर्जी फ्लो में। नेक्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड, नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड। कंप्लीट, कंप्लीट होगा तो बताओगे। हेलो, नेक्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड, डेफिनेशन लिखो। इकोलॉजिकल पिरामिड का डेफिनेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, it is the graphical representation of the organism representing in each trophic level which shows pyramidal shape, middle shape. This is the definition of ecological pyramid. पहले definition लिखो। Ecological pyramid, it is the graphical representation of the organism representing in each trophic level which shows pyramidal shape. pyramidal shape definition लिखोगे तो कंप्लीट होगा तो बताओगे। हेलो, कंप्लीट हो गया सर। नेक्स्ट। नो सर, एक अच्छा लिखो लिखो। It is the graphical representation of the organism representing in the each trophic level which shows the pyramidal shape. This is ecological pyramid. Next, ecological pyramid of three types. Ecological pyramids are three types. Ecological pyramids are three types. Number one, pyramid of energy, pyramid of
number and pyramid of biomass. Three types of ecological pyramid: pyramid of energy, pyramid of number, and pyramid of biomass. ये थ्री टाइप्स पिरामिड होता है। ईच एंड एवरी का फिर डेफिनेशन लिखना है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिए तो कंप्लीट कीजिएगा तो बताओगे। हो गया। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो एक। First one, pyramid of number. Pyramid of number. The relationship between producers and consumers. Producers and consumers in an ecosystem. In an ecosystem can be represented in the form of pyramid, which is known as pyramid of number. डेफिनेशन लिखो पहले। पिरामिड ऑफ नंबर किसको बोलते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर। इसके बाद इससे रिलेटेड डायग्राम भी है। पिरामिड ऑफ नंबर this is producers, this is primary consumers, this is secondary consumers, primary consumers, secondary consumers, and this is top consumers. ये डायग्राम बना लीजिए। पिरामिडल से सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, इसमें मान लीजिए 1000। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में हो जाएगा आपका 100, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 10 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में टॉप कंज्यूमर्स में 1 होगा। दैट मींस it gradually decrease the number as per the 10% law of energy transfer। इस डायग्राम को बना लीजिए। दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर, दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। इसको बनाओ।
कंप्लीट हो गया है? हेलो, यस सर। अच्छा ठीक। इसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास। Pyramid of biomass. Pyramid of biomass definition. The relationship between relationship between producers and consumers, such and consumers can be represented in the form of pyramid, in the form of pyramid in terms of biomass, in terms of biomass, which is known as pyramid of biomass. Okay, the pyramid of biomass इसका डायग्राम भी बनाना है। इसमें 1000 kg, इसमें हो जाएगा 100 kg, 10 kg, 1 kg। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर्स, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और दिस इज टॉप कंज्यूमर्स। ये हो जाएगा आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसको बनाओ। Complete.
हेलो हेलो Yes, sir. Complete. हाँ, सब कोई लिख रहे हैं ना, खाली तुम ही लिख रहे हो? अच्छा, इसके बाद इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास में थोड़ा बहुत बोलना है। पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज बायोमास जनरली इन सी पिरामिड, इसको लिखना है पिरामिड ऑफ बायोमास in C is generally inverted. Pyramid of biomass is pyramid of biomass in the C generally inverted. हम लोग जानते हैं पिरामिड सब में अपराइट होता है, बट in case of the pyramid of biomass in the sea generally inverted way. Inverted pyramid justify क्या कारण होता है जब pyramid of biomass in the sea generally inverted, or that is we can say it is inverted. इसका आंसर होगा, आंसर मैं लिख रहा हूं, इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ सी द नंबर ऑफ phytoplankton, number of planktons are more number of phytoplankton are less than consumers. Phytoplankton, in case of the sea, the number of phytoplanktons are less than consumers. In case of sea, the number of phytoplanktons are less than consumers. That's why the pyramid of biomass in the sea is generally inverted. Pyramid of biomass in the sea is generally inverted. Understand? Hello? हेलो, Yes, sir. हाँ, पिरामिड इन्वर्टेड वे किस में होता है? सी में होता है, पॉन्ड में होता है। क्यों होता है? उसमें जितना फाइटोप्लैंक्टन्स बनता है, फाइटोप्लैंक्टन्स को एक्वाटिक इकोसिस्टम में उसमें दैट मींस प्रोड्यूसर्स माना जाता है, बट प्रोड्यूसर्स का नंबर कंज्यूमर से कम हो जाएगा तो पिरामिडल शेप क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए तभी ना कंज्यूमर सरवाइव करेगा। लेकिन पॉन्ड और सी में क्या होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर क्या होता है? कम हो जाता है इन केस ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, फिशेस वगैरह इससे कम होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, इस कारण से उसका शेप हो जाता है इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर लिख लो। Complete. Next. Pyramid of energy.
pyramid of energy. The relationship between producers and consumers. Producers and consumers in an ecosystem can be represented in the form of pyramid, in the form of pyramid, in terms of flow of energy, in terms of flow of energy called pyramid of energy. Pyramid of energy. It is always upright. इसके बाद इसका डायग्राम बना देता हूं इधर। इसमें मान लीजिए 1000 जूल हो जाएगा, इसमें 100 जूल, इसमें 10 जूल, इसमें 1 जूल, है ना। ये नीचे हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर्स हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी direct consumers, ये top consumers. और नीचे आप इसको पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको बनाओ। कंप्लीट होगा तो बताओगे? हो गया सर। अच्छा, तो आज जो डिस्कस किए इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड, it is the graphical representation of the organisms which are representing in the each and every trophic level, which shows the pyramidal shape is known as the ecological pyramid. Ecological pyramid, three types: pyramid of energy, pyramid of biomass, and pyramid of number. As per 10% law of the energy transfer, so it shows the pyramidal shape. तो सभी का डायग्राम में आपने बनाया, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ एनर्जी में अभी लास्ट में जो डायग्राम बना है उसमें नीचे आगे प्रोड्यूसर्स में 1000 जूल एनर्जी स्टोर होगा, तो दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स में 100 जूल होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 10 जूल होगा, एंड
टॉप कंज्यूमर्स में 1 जूल कैलोरी स्टोर होगा एंड अल्टीमेटली इट शोस पिरामिडल शेप। लेकिन क्वेश्चन अराइज पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट होता है, बट इन केस ऑफ द पॉन्ड एंड सी उसमें इन्वर्टेड होता है। क्यों इन्वर्टेड? जनरली द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी जनरली इन्वर्टेड। इसका पीछे कारण क्या है ना, इसमें जितना फाइटोप्लैंक्टन होता है पॉन्ड और सी में, नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स दैट मींस प्रोड्यूसर्स आर लेस देन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इस कारण से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो जाएगा तो वो पिरामिडल से इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। तो सी और पॉन्ड में इसका क्या है ना, सी और पॉन्ड में ये पिरामिड जो होता है ये इन्वर्टेड है। ये क्वेश्चन बहुत बारीक सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। हाँ अच्छा, इसके बाद हॉलीडे का बाद ही क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो उस इन द मीन टाइम आप ये सब चैप्टर जहां तक पढ़ाई हुआ उसको ठीक से पढ़ के रखोगे। ठीक है, ये जो है पहले पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम और ये सेकंड चैप्टर है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, सेकंड है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम जो सेकंड चैप्टर है इसका भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ बाकी है टॉपिक, वो आफ्टर हॉलीडे का बाद ही शुरू किया जाएगा। बट इन द मीन टाइम आपको ये चीज थोड़ा सा ये करना है, बट अटेंटिवली इसको पढ़ना है। क्यों ना क्लास कब से ऑफलाइन होगा इसको ले, तो आप लोग का सेशन पूरा बीत ही गया लगभग। हाँ, तो इसमें कोई उम्मीद कमी है क्लास होने का इस साल में? ठीक है, तो उम्मीद कीजिए ये जो है आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपको चलना है। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ सुन रहा है ना मेरा बात? आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर। ठीक ठीक है, अच्छा तो आज और टाइम